اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب سوم۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے کے موافق تبرکن اس کو 20 فصلوں پر منقسم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، روح انسانی کے ان حجابوں اور اس کی آفات کے بیان میں جو قالب سے اس کا تعلق ہونے کے سبب لاحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ مجھے عصر کی قسم کہ انسان البتہ نقصان میں ہے مگر وہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نور اور ظلمت کے 70,000 پردوں میں ہے۔ واضح رہے کہ جب انسانی روح کو رب العالمین کے قرب و جوار سے قالب کے عالم اور عناصر کی تاریکی اور دنیا کی وحشت سرائے سے تعلق دیا تو اسے ملک اور ملکوت کے 360,000 عالم سے گزارا، اور ہر عالم سے جو اس کا خلاصہ اور عمدہ چیز تھی وہ اس کے ہمراہ کی، اور ہر ایک عالم سے جو کچھ باقی رہ گیا یا اس میں نفع تھا یا ضرر، نفع حاصل کرنے کا فطری انس تھا یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ منفعت بخش چیز کو لیتا ہے اور مضر کو دور کرتا ہے۔ بس اتنے ہزار روحانی اور جسمانی عالموں سے عبور کرتے ہوئے قالب سے ملنے تک روح کو 70,000 نورانی اور ظلمانی حجاب حاصل ہوئے۔ نورانی حجاب روحانیت کے عالم سے حاصل ہوئے اور ظلمانی حجاب جسمانیات کے عالم سے، کیونکہ ہر عالم میں ہر ایک چیز کو اس کو دیکھنا اگرچہ دوسری حالت میں اس کے کمال اور خواہش تھی، لیکن اس وقت ہر ایک روح کے لیے حجاب ہو گیا جس کے سبب وہ ملکوت کے مطالعہ، جمال حق کے مشاہدہ، احدیت کے مخاطبہ کے ذوق اور قربت کے شرف سے محروم رہا، اور قربت کے اعلیٰ علیین سے طبیعت کے اسفل السافلین میں آ گرا، اور روح اور جسم کے چند روزہ تعلق میں باوجود خلوت خاص میں 1000 سال قربت سے مشرف ہونے کے اس قدر حجاب ظاہر ہوئے کہ ان دوستوں کو بالکل فراموش ہی کر ڈالا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اس نے ان کو بلا دیا، اور آج کتنا ہی اس عالم کی بابت سوچتا ہے لیکن کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ اگر حجابوں کی یافت میں مبتلا ہوتا تو ایسا فراموش کار نہ ہو جاتا، اور اس کی جو دولت حاصل کی تھی وہ وحشت سے متبدل نہ ہوتی اور حقیقی جان کو برباد نہ کرتا۔ اگر دوستوں کی جدائی نہ ہوتی تو خواہشیں ہمارے روحوں کا رستہ نہ پا سکتی۔ انسان کا نام انس سے مشتق ہے، جو پہلا نام اسے بارگاہ الہی سے ملا، اور کہا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی خطائر قدس میں تھا اور اس عالم سے پیوستہ تھا۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ ہم نے انسان کو عمدہ صورت کا بنایا، یعنی عالم ارواح میں۔ اور جب اس عالم سے ملا اور وہ انس فراموش کر دیا تو پھر ایک اور نام اس کی فراموش کاری کے مناسب رکھا، اور چونکہ زمانہ حال اور مستقبل میں خطاب کرتا ہے اس واسطے اسی کے مناسب اس کا نام رکھا کہ یا ایھا الناس، یعنی اے فراموش کار، شاید کہ تو انس کے زمانے کی نسبت کچھ یاد کرے۔ اور کہا گیا ہے انسان کا نام ناس اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ بھول جانے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جو دنیاوی روزگار میں مشغول ہیں خدا کے دنوں کی یاد دلا جبکہ وہ مقام قرب اور بارگاہ الہی کے قرب و جوار میں تھے۔ شاید اس یاد دلانے سے وہ مہر و محبت ان کے دلوں میں جنبش کرے اور دوبارہ اصلی گھونسلے اور حقیقی وطن کا قصد کریں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹیں سے ظاہر ہے۔ اگر اس وطن کی محبت ان کے دلوں میں جنبش کرے تو عین ایمان ہے، کیونکہ حب الوطن من الایمان مشہور ہے۔ اور اگر واپس ہونے کا قصد کرے اور جس راہ سے آیا ہے اسی راہ سے پھر واپس چلا جائے تو یہ ایقان کا مرتبہ ہے، اور اگر اپنے اصلی وطن میں پہنچ جائے تو یہ احسان کا مقام ہے، اور اگر اصلی وطن سے گزر جائے تو یہ عرفان کی چوکھٹ ہے، اور اگر وہاں پر نہ ٹھہر کر
बारगाह इलाही में वसूल का कदम रखे तो ये दर्जाए अयान है। इसके बाद न वसफ की हद है और ना आलिम बयान। और अगर इस असली वतन मोहब्बत दिल में जोश ना हो और वापसी का कसद ना करे, बल्कि दिल को इस जहान की दौलत और माल से लगाए और नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करे, तो ये ईमान का नसियान है और कुफर का सबसे अदना दर्जा। जैसा कि जिसने रुए जमीन पर हमेशा रहना चाहा और अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, बस उसकी मिसाल कुत्ते किसी है। जो शख्स इन्हें हिजाब में रहा और इन आफतों में गिरफ्तार हो गया, वो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी मुझे असर की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है कि अबदी नुकसान में रहा। कसमिया कहता है कि इंसानी रूह कालिब के ताल्लुक की वजह से नुकसान की आफतों में गिरफ्तार है, मगर वो शख्स जिन्होंने ईमान और अमले साले के वसीले रूह को इन आफतों और सिफात कालिब के हिजाबों से खलास दी और असली जाए करार पर आ पहुंचे। कालिब से इंसानी रूह और उसकी आफात की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास बीज हो, अगर वो उसको बोए और उसकी परवरिश करे तो 100 या 700 जाते हैं। अगर वो बीज इसी तरह रहे तो भी उससे कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब बीज जमीन में बोकर उसकी परवरिश ना करे तो मिट्टी की ये खासियत है कि बीज सड़ जाए और बीज के फूट निकलने की इस्तिदाद को बातिल कर दे। बस इंसानी रूह का बीज पेशतर इसके के कालिब की जमीन में डाला गया। उसमें कलाम हक के सुनने की काबिलियत थी, जैसा कि अलस्तो बिरब्बिकुम के अहद से मालूम होता है, और भला के जवाब की लयाकत उसमें थी। अगरचे ये काश्तकारी इस वास्ते की कि रूह के बीज को बिनाई, सुनवाई और गोयाई जो उसमें पहले से मौजूद है 100 गुनी या 700 गुनी हो जाए, लेकिन जब तक इस बीज को ईमान का पानी और अमले साले की तरबियत ना की जाए, इसकी हालत नुकसान पजीर रहती है और इस हकीकी बिनाई, सुनवाई और गोयाई से महरूम रह जाता है। और जब उसे ईमान का पानी दिया जाए और अमले साले से इसकी तरबियत की जाए तो बीज फल लाता है और बशरियत की जमीन के नशेब से आलमे अबूदियत की बुलंदी का कसद करता है और नुकसान के अदना दर्जों से खुलासी पा जाता है और मदद और तरबियत के मुवाफिक जो उसे मिलती है, निजात के दर्जों को जिससे मुराद बहिश्त है, पहुंच जाता है। और अगर कम हिम्मती और बेवकूफाना तवा से दरख्त की तरबियत ना करे और फल की तलब ना करे, इसे कब अहले जन्नत के दर्जात मिल सकते हैं। बहुत से अहले जन्नत बेवकूफ हैं। अगर फल लाने के मर्तबा को पहुंच जाए जो कि मारिफत का मर्तबा है, तो वो अहलुल्लाह और खसाने खुदा से हो जाता है। और अगर नौजुबिल्लाह रूह के बीज को ईमान का पानी और अमले साला की तरबियत ना हो तो बशरियत की जमीन में सड़ जाएगा और खाकी तबीयत कबूल करेगा। और मगर उसने जमीन पर हमेशा रहना चाहा और अपनी ख्वाहिश की पैरवी की खासियत से मखसूस हो जाता है और खालिदीन फीहा अबदन अबदा, उसमें अब्दुल आबाद तक रहेगा के मुताबिक नुकसान में रहता है। जब बच्चा पैदा होता है और अभी हिजाब मजबूत नहीं होते और कुर्बे हक का अहद अभी ताजा ही होता है और उनसे हक का सहो कभी बाकी होता है, इसलिए जब मां से जुदा होता है तो उसी वक्त रोने लगता है। और हर घड़ी जब बारगाह इलाही का शौक गालिब होता है तो फरियाद और आहुजारी करता है और उस हाकिम के रंज मुफारिकत में बेताब रहता है और रंजूर दिल और महजूर जान के सबब जुबाने हाल से बड़ी आजिज़ी के साथ बारगाह इलाही में अर्ज करता है। रुबाई हर लहजा उसको उसकी नजरी हिस्स के मुनासिब और उसकी तबाह को खुश करने वाली चीजों में मशगूल करते हैं और उसका दिल बहलाते हैं ताकि वो उस आलम को फरामोश कर दे और इस आलिम से मोहब्बत पैदा करे। दूसरी मर्तबा जब उसे एक लहजा छोड़ देते हैं तो हिंदुस्तानी हाथी ख्वाब में देखता है तो फिर रोने लगता है और ऐसा रात के वक्त ज्यादा होता है, इस वास्ते कि उनके वक्त उसकी निगाह महसूसात में मशगूल रहती है और रात को कम मशगूल होती है, इसलिए रात को गिरियाजारी ज्यादा करता है। रुबाई फिर मेहरबान मां पस्तान बच्चे के मुंह में डालती है तो दूध का मजा चखता है और इस तरह होते होते वो दूध से मानूस हो जाता है और असली उन्स को भूल जाता है, यहां तक कि हद्दे बुलूग तक पहुंचते पहुंचते आलमे महसूस से पूरे तौर पर मानूस हो जाता है और आलिमे गैब बिल्कुल फरामोश हो जाता है। और यही वजह है कि हर हैवान का बच्चा थोड़ी मुद्दत में परवरिश पा जाता है और अपनी मिसाल हद से कयाम करता है
اور جلدی اپنی جنسیت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے اور قوت حاصل کر لیتا ہے اور اس کا بدن بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور آدمی کا بچہ مدت تک اپنی مصالحت سے قیام کرتا ہے اور 15 سال میں بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے اور 40 سال میں اپنی کمالیت کو پہنچتا ہے اور اس کا بدن مکمل ہوتا ہے اور پوری طاقت حاصل کرتا ہے۔ یہ محض اس واسطے ہے کہ آدمی کے بچے کو دوسرے عالم سے انس ہے اور غیر کے مشرب کا انس اسے حاصل ہے، اور اس عالم کے فراق کا بوجھ اس کی جان ہے۔ اس عالم سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا اور اپنے دئیں اس عالم کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن عرصہ دراز میں تاکہ بتدریج عالم علوی سے اس کی طبیعت غیر مانوس ہو کر مشارب غیبی فراموش ہو جائے، پھر اسے مشارب حسی کے ذوق حاصل ہوتے ہیں، پھر اس عالم کی ایک طرف میں ہوتا ہے، یعنی غیب و شہادت کی دو رنگی میں ہوتا ہے، اس وقت تک زیادہ نشوونما نہیں کرتا اور اپنے جسمانی کمال کو نہیں پہنچتا۔ جب اس عالم کو بالکل بھول جاتا ہے اور اس کا بدن اپنی پوری طاقت حاصل کر چکتا ہے، تو پھر دنیاوی نفع حاصل کرنے اور دنیاوی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے ایسے ہیلے اور مکر سوچتا ہے اور کرتا ہے کہ کوئی حیوان یا شیطان نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ حیوانات کو دوسرے عالم کی خبر نہیں ہوتی اور اس عالم کی ایک طرف پڑے ہیں، اس واسطے اپنی ساری ہمت اپنی بہتری پر صرف کرتے ہیں اور بڑی خواہش سے حسی لذتوں کو پورا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اسی لیے جلدی پرورش پا جاتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ غرض کے روح انسانی سے روحانی اور جسمانی حجاب جو قالب کے تعلق اور ملک اور ملکوت کے عبور سے اسے حاصل ہوتے ہیں، جو قولی اور فعلی حرکت ظاہر و باطن میں تباہ کے موافق ظہور میں آتی ہے، وہ سب اس کی جہالت، ظلمت، دوری اور حجاب کا باعث ہوتی ہے اور عالم غیب سے اس کے حرمان کا سبب ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس عالم کی نسبت ایسا بے خبر ہو جاتا ہے کہ ہاں ہزار سچے مخبر اسے خبر دیں کہ تو ایک وقت میں اس عالم میں تھا، تو بھی وہ قبول نہیں کرتا اور اس پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو منظور نظر عنایت ہو گزرے ہیں یا نہیں، ان میں اس انس کا اثر جو انہیں بارگاہ الہی سے حاصل تھا باقی ہے، اگرچہ وہ اپنی عقل سے نہیں جانتے کہ ہم کسی وقت دوسرے عالم میں تھے، لیکن جب کوئی سچا مخبر انہیں کہتا ہے تو اس مخبر کے صدق کے نور کا اثر اور وہ انس جو سننے والے کے دل میں باقی ہوتا ہے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال لیتے ہیں، اس واسطے کہ دونوں کا اصلی وطن ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اس موافقت کا اثر جس دل پر پڑتا ہے سب کے سب فوراً اقرار کر لیتے ہیں، مختصر یہ کہ جہاں کہیں اس انس سے کچھ بھی نشان باقی ہے اور وہی ایمان کا بیج ہے، وہ جلدی ایمان لاتا ہے، اور جس کے دل میں وہ انس باقی نہیں رہا اور اس کا دل عالم غیب سے بالکل وابستہ نہیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لاتا، جیسا کہ اس آیت شریف سے ظاہر ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر گمراہی کے پردے چھائے ہوئے ہیں۔ بعض سائلوں کے لیے اثناء سلوک میں حجاب ان کی نظروں سے دور کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ روحانی اور جسمانی تمام مقامات جن سے اس نے عبور کیا تھا پھر دیکھ لے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کی روح کو قالب سے تعلق دیتے وقت نسیان سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اور محبت کا اس بات ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پہلا مقام اور تمام موجودات پر عبور کرنا، باپ کی پیٹھ میں پہنچنا، ماں کے رحم میں داخل ہونا اور اس جہان سے ملنا، سب کچھ یاد ہوتا ہے اور اس کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے جمع رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ محمد کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیشا پور میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ شیخ علی محسن سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی طرح یاد ہے کہ میں عالم ارواح میں تھا، اور جب میں عالم ارواح سے اس عالم میں آیا تو میری روح کو آسمان پر پھرایا گیا، جس آسمان پر میں جاتا وہاں کے رہنے والے میری حالت پر رو دیتے اور کہتے کہ اس بیچارے کو پھر مقام قرب سے عالم بوت میں بھیجتے ہیں اور انس سے وحشت میں بھیجتے ہیں،
और आला से असफल में लाते हैं और खतारे कुदस के फराग कूचे से दुनिया के तंग कूचे में पहुंचाते हैं। मेरी इस हालत पर वो अफसोस करते थे और मेरे लिए बख्शिश मांगते थे। उनको हुक्म इलाही हुआ कि ये ख्याल न करो कि इसको इस आलम में बेचना उसके लिए खवारी का बायस है। मुझे अपनी खुदाबंदी की कसम है कि इस जहान में अपनी सारी उम्र में एक दफा भी किसी कुएं पर किसी बुढ़िया औरत के गड़े में एक डोल पानी निकाल कर डाले तो इससे बेहतर है कि लाख साल खतारे कुदस में सुबूही और कुद्दूसी में मशगूल रहे। तुम हर ग्रोह अपनी हालत में मस्त है कि गोदड़ी में सर लपेटे हुए रहो और हमारी खुदाबंदी का काम हमारे ही सुपुर्द रहने दो, क्योंकि इन्नी आलम माला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही अजमाइन। फसल नंबर 2, रूह को कालिब के ताल्लुक देने की हिकमत और उसके फवायद के बयान में अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया है, मैंने जिन्नों और इंसानों को इस वास्ते पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, यानी मुझे पहचाने। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया मज़रतुल आखिरा, यानी दुनिया आखिरत की खेती है। वाज़ेह रहे कि जिस तरह दुनियावी जमीन को अल्लाह ताला ने यह काबिलियत अता फरमाई है कि जब कोई दाना वगैरह उसमें बोया जाता है और उसकी परवरिश की जाती है तो 1 के 100 या 700 हो जाते हैं, जैसा कि इस आयत शरीफ से जाहिर है। इसकी मिसाल उस दाने की सी है जो उगे और उसमें 7 खोशे लगे और हर खोशे में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे भी कई गुना कर देता है। इसी तरह दुनियावी काबिलियत में भी ये काबिलियत रखी है कि वो आखिरत की खेती बन सके और इसमें नेक अमलों के बीच बोए जाए, ताकि कयामत के दिन 1 के 100 या 700 हासिल कर सकें। जैसा कि नेकी की वैसी ही 10 से लेकर 700 तक नेकियां मिलती हैं से जाहिर है, और हो सकता है कि अनगिनत और बेशुमार हासिल हों, जैसा कि बेशक साबिरून को बगैर हिसाब के अजर मिलता है से जाहिर है। इस तरह इंसानी कालिब की जमीन को यह इस्तिदाद इनायत की है कि जब वनोफिकत फीहे मिन रूही, और उसमें मैंने अपनी रूह पोंकी की रूहानियत का बीज उसमें बोए और इबादत के पानी और शरीयत के आफताब से उसकी परवरिश करें, तो उससे कुर्ब और मारिफत के इस कदर फल हासिल होते हैं जो किसी मखलूक के वहम और फहम से बाहर और किसी कहने वाले का बयान उसकी हकीकत को नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस कदर के फरमाया, मैंने अपने परहेजगार बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जिसे ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, और ना ही किसी इंसान को इसका ख्याल आया। जिस तरह दुनियावी बीज को उसके कमाल तक पहुंचाने के लिए इस कदर असबाब, आलात और औजार दरकार हैं, जैसा कि जमीन जिसमें बीज डालते हैं और आसमान के जिससे पानी और हासिल होते हैं, और हवा जो जमीन की सर्दी और आफताब की गर्मी को मोतदिल करती है, और नेज़ दूसरे असबाब और आलात। मसलन कोई आदमी जब बीज बोता है तो उसे बैलों की जरूरत होती है, और नेज़ लोहा, लकड़ी और रस्सी दरकार होती है। उनके लिए बढ़ई, लोहार और रस्से बटने वाले दरकार हैं जो इन आलात को दुरुस्त कर सकें, और नेज़ इन शख्सों को भी बहुत सी खलकत दरकार है ताकि वो अपना काम चला सकें, जैसे नानबाई, कसाब, बनिए, बावर्ची, सब्जी फरोश, काटने वाले, बुनने वाले, धोने वाले और सीने वाले वगैरह वगैरह। और फिर उनको भी और लोगों की जरूरत है ताकि ये अपने काम में अच्छी तरह मशगूल हो सकें, जैसे चक्की चलाने वाले, चराने वाले, सौदागर और जानवर और सारबान वगैरह। गर्ज के हर एक किस्म के शख्सों को दूसरे पेशावरों की जरूरत होती है ताकि अपनी मसलहत को कायम रख सकें, और इन सब बातों के बाद एक आदिल बादशाह की जरूरत है ताकि खलकत को मसावी तौर पर ख्याल करे और जबरदस्तों की जबरदस्ती और जुल्म को कमजोरों से रोके, और रैयत का हामी और निगहबान रहे ताकि हर एक शख्स अमन और फरागत से अपने काम में मशगूल हो सके। जब तू गौर की निगाह से देखेगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि दुनिया में आसमान, सितारे, जमीन, चांद, सूरज, मुफरद, अनासर, मुरक्किबात, नबातात, हैवानात, फरिश्ते, जिन, इंसान, कारीगर, अहले हरफा, ताजिर, आलिम, अमीन, बादशाह, वजीर और बड़े बड़े आदमी, सबको एक दुनियावी बीज की खातिर काम में मशगूल रहना पड़ता है। बस ख्याल करो
کہ جہاں پر روحانیت کے بیج کی کھیتی باڑی ہوگی جو کہ من روحی کے خاص انبار سے نکال کر ونفخت فیہ کے تانا کے بغیر انسانی قالب کی زمین میں بویا گیا ہے، اس کی پرورش میں اسے درجہ کمال یعنی مقام معرفت تک پہنچانے کے لیے کس قدر آلات، اوزار اور اسباب درکار ہوں گے۔ بس جب تو حقیقت کو غور سے دیکھے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا، آخرت، 8 بہشت اور 7 دوزخ اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ اس بیج کی پرورش کے لیے درکار ہے تاکہ یہ معرفت کا ثمرہ حاصل کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی پہچاننے کے لیے۔ پس روح اگرچہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار سے ذوق حاصل کرتا تھا اور اس عالم کی مناسب معرفت اسے حاصل تھی اور حق تعالیٰ کے مکاشفہ، مشاہدہ اور مکالمہ سے بے بہرا تھا، لیکن ان مقامات کا کمال اور ان سعادتوں کی کمالیت قالب کے تعلق اور اس کی پرورش سے پائی، اس واسطے کہ یہ بیرونی اور اندرونی آلات اور اوزار جن کی ضرورت اسے معرفت حاصل کرنے میں تھی یہاں پر میسر ہیں، مثلا نفس، دل، سر، خفی اور قوائے بشری کے مددگار، باطنی وغیرہ، اور 5 حواس ظاہری یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، کیونکہ اگرچہ روح کو عالم غیب میں روحانی نور حاصل تھا جس سے اس عالم کا ادراک اسے حاصل تھا اور اس مقام کے مناسب اسے عقل بھی تھی، لیکن غیبی اور شہادتی مدرکات جو دونوں جہان کی جزیات اور کلیات کا ادراک کرے اسے حاصل نہ تھی، وہ یہاں پر حاصل تھی، اور حقیقی معرفت کا استحقاق ان آلات اور اوزاروں کے وسیلے پایا، اور معرفت حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت مراد ہے، جیسا کہ فرمایا ہے بس مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ معرفت کی 3 قسمیں ہیں، معرفت عقلی، معرفت نظری اور معرفت شہودی۔ معرفت عقلی تو تمام لوگوں کو حاصل ہے اور اس میں کافر، مسلمان، یہودی، آتش پرست، ملحد، فلسفی، تبائی اور دہری یہ سب شریک ہیں، اس واسطے کہ یہ سب عقل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ ان میں جو خلاف ہے تو وہ صرف صفات الوہیت کے بارے میں ہے، نہ کہ ذات میں، اور یہی خلاف مسلمانوں میں بھی باہم ہے، لیکن ذات الوہیت کے سب معترف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں فرمایا ہے۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ خدا نے، اور وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، لیکن اس قسم کی معرفت نجات کا موجب نہیں، لیکن انہیں نجات حاصل ہے جن کی نظر عقلی ایمان کے نور سے مدد لے کر نبوت کا اقرار کر گئی، اور جو شرع کے اوامر و نواہی پر قائم ہے کہ جس میں روح کے بیج کی تربیت ہوتی ہے تاکہ بیج پھل لا سکے، اور معرفت عقلی میں حواس ظاہری اور قوائے بدنی اور نظر عقلی کے مدرکات کی ضرورت ہے تاکہ ظاہری حواس سے عالم محسوسات کو دیکھ سکے اور قوائے باطنی سے عقلی نظر استعمال کرے۔ عقل فوراً یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ اس مصنوع کا صانع ضرور ہونا چاہیے، اور جب آہستہ آہستہ موجودات کی ہر نوع کو غور سے دیکھتا ہے تو قدرت کی خردکاری اور صنعت بازی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایسا فعل ضرور کسی قادر، حی، حکیم، عالم، سمیع، بصیر، متکلم اور مرید سے ظاہر ہونا چاہیے۔ بس جس شخص کی نظر زیادہ درست اور عقل زیادہ صاف ہو اور حجاب کم ہو اور ریاضت اور سوچ زیادہ ہو، اس کی استدلالات مصنوع سے صانع کے اسبات پر زیادہ تر ہوں گی اور اس کی دلائل اور براہین وحدانیت پر زیادہ واضح ہوں گی۔ لیکن واضح رہے کہ روح کو قالب میں اس قسم کی معرفت کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس واسطے کہ اس قسم میں دلیل کا طلب کرنا ہے، اور دلیلوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کافر، ملحد اور فلسفی وغیرہ ہر ایک اپنے کفر پر دلیلیں دے سکتا ہے۔ جب بہت سی دلیلیں پیش ہوں تو ان میں سے کسی ایک کا قبول کر لینا واجب نہیں، تاوقت کہ اسے دوسری دلیلوں پر ترجیح نہ ہو، اور اگر ترجیح ایک طرف کی ثابت ہو جائے اور ٹھیک بھی ہو تو معقول دلائل سے بھی صانع کے اسبات سے بڑھ کر نہیں۔ خود روح کو قالب سے تعلق پیدا ہونے سے پیشتر معرفت حق میں ان مقامات سے بڑھ کر دلیلیں حاصل تھیں،
जो कुछ आज वो अकली सुनता है उस रोज वो बिला वसीला खुद हक ताला से सुनता था, क्योंकि अलस्तो बिरब्बिकुम का जवाब बना देता था। यहाँ ठीक नहीं आता था कि देखी हुई चीज की खबर देवे और अयान को बयान करे। ये ठीक इसी किस्म से है कि कहते हैं इसे छोड़ दो, ये फिर सामने आ जाएगा। मारिफत नजरी खवास को हासिल होती है और ये इस तरह पर होता है कि जब रूह का बीज बशरियत के जमीन में शरीयत के कानून के मुवाफिक तरीकत की परवरिश इस तरह पाता है जिस तरह के तजल्ली या रूह की फसल में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा, और इंसानी दरख्त को फल लाने की नौबत आ पहुंचती है, तो फल में वही खासियत आ जाती है जो बीज में थी, और नेस और भी बहुत सी चीजें उससे पैदा होती हैं। इसकी मिसाल जर्द आलू की सी है कि जब से उसे बोते हैं तो उससे सब्जा, दरख्त, शाख, शगुफा और जर्द आलू जाहिर होते हैं। एक बीज बोकर उससे इसी किस्म के 1000 बीज बाइना ही पैदा हो सकते हैं, और जर्द आलू का छिलका, पत्ते, शाखें, दरख्त और जड़ जो बीज में पहले न थी अपने साथ और बढ़ा ली, और उनमें से हर एक में एक खास खासियत होती है जो दूसरे में नहीं होती। जो छिलके में मजा और खासियत होती है वो मगज में नहीं होती। पहले इस बीज से सिर्फ मुंह को मजा हासिल होता था, और अब इसे फल और दरख्त से मुंह को भी मजा हासिल होता है और आंखों को भी, क्योंकि सब्जी से बिनाई ज्यादा होती है, मशहूर है, और सूंघने की ताकत को उसके शगुफे से हज हासिल होता है, क्योंकि उसमें बड़ी खुशबू होती है, और नेस हाथ को हज हासिल होता है क्योंकि उसकी लकड़ी का असा बनता है, और नेस पांव को हज हासिल होता है क्योंकि उसकी लकड़ी से जूतियां तैयार की जाती हैं, और उनके अलावा उसमें और बहुत सी खासियतें, फायदे और मसलहतें हैं जो कि बीच में न थीं, अगरचे उसमें पोशीदा तौर पर मौजूद थीं। बस इसी तरह रूह के बीच से बदन का दरख्त जाहिर होता है, और नफ्स और सिफात नफ्स की शाखें उसमें लगती हैं, और दूसरी तरफ पर दिल और उसकी सिफात की शाखें निकलती हैं, और हवा से जाहिरी के पत्ते निकलते हैं, और कवाए बातनी की जड़ें निकलती हैं, और सर का शगुफा फूटता है, और खफी का आकूक उसमें जाहिर होता है, और मारिफत का जरदालू उसमें लगता है। बस रूह को फल लाने के मुकाम पर किस्म किस्म के आलात और अदराकात जाहिर होते हैं जो पहले न थे। जाहिरी और बातनी मुदरकात, जाहिरी जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, जिनसे सारे आलम शहादत का, जिसे आलम मुल्क भी कहते हैं, माउस की रंगत चीजों के अदराक कर सकते हैं, और जिसका ये 5वां हवास इदराक नहीं कर सकती, उसे आलम मलकूत कहते हैं। और वही आलिम गैब है जिसके बहुत से मदारिज और मुरातिब हैं। उनका अदराक हवा से खमसा बातनी कर सकते हैं। हवा से हमसा बातनी ये हैं अक्ल, दिल, सर, रूह और खफी। और जिस तरह जाहिरी हवा से एक दूसरे के मुदर्रक में दखल नहीं दे सकती, जैसा कि सुनने की ताकत देखने वाली चीजों में काम नहीं आ सकती, और देखने वाली कुव्वत सुनने वाली चीजों में काम नहीं आ सकती, इसी तरह हवा से खमसा बातनी भी एक दूसरे के मुदरकात में तसर्रुफ नहीं करती। जैसे अक्ल दिल की मर्जियात में दखल नहीं दे सकती और दिल माकुलात अक्ल में दखल नहीं दे सकता, इसी तरह बाकियों को भी कयास कर लो। बस वो लोग जो माकुलात में अकली नजर से दौड़ धूप करते हैं, उन्हें दिल के मरातिब और दूसरे मरातिब की जरा खबर नहीं होती, और हकीकत में खुद दिल ही उनके पास नहीं। उन्होंने चाहा कि अक्ल को दिल, सर और खफी के अवाले में जुलान दें, मजबूरन अक्ल को फलसफी और ज़िंदगिया अकदों में ला डाला। लेकिन साहिब सादत जब घरों में दरवाजों की राह दाखिल होकर दरवाजे से अंदर आता है, तो रूह के बीज की परवरिश शरीयत के कानून के मुवाफिक करता है। ये मुदर्रिकात उसे कमाल को पहुंचा देते हैं, और जो कुछ आलिम मुल्क और मलकूत वगैरह में 360,000 आलिम हैं, इन्हें जाहिरी और बातनी मुदरकात के वसीले इदराक करता है। यहाँ तक कि जिस तरह आलिम गैब में कुलियात का आलिम था, इसी तरह अब वो गैब और शहादत दोनों की जुज़ियात और कुलियात का आलिम हो जाता है, और इन अवालिम का हर एक जर्रा जो सिफात इलाही में से एक सिफ्त का मजहर है, और इलाही निशानियों में से एक निशानी उसमें रखी हुई है। हिजाब का निकाब चेहरे से उठा देता है, और आयते हक का जमाल उसे दिखाता है। हर एक शय में उसके लिए निशानी है, और इस बात पर दलालत करती है कि वो खुदा एक है।
आलिम इकान की दहलीज है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन व आसमान की सल्तनत दिखा दी ताकि उसे यकीन आ जाए। यहाँ पर हक की ज़ात पाक को वहदानियत से पहचान सकते हैं और उलूहियत की सिफात को ऐनुल यकीन से देख सकते हैं। ये वो मुकाम है जिसकी निस्बत वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस चीज को मैंने देखा उसी में मुझे अल्लाह ताला दिखाई दिया। ये मर्तबा अगरचे बहुत बुलंद है और ये मुकाम बहुत शरीफ है और ये खवास का मर्तबा और मुकाम है, लेकिन रूह को इस आलम में बतौर बीज के इस कदर मारिफत की नजर के लिए जो अभी इंसानियत के दरख्त का शगुफा है भेजा गया। बस जिन खवास को इस्तेदाद का कमाल और तरबियत की खूबी इनायत फरमाई, उनको इस दरख्त के शगुफे ही में नहीं छोड़ा बल्कि हकीकी फल के दर्जे पर पहुंचा दिया, और वो मारिफत शहूदी है। और कायनात को पैदा करने का ख्याल भी इसी मारिफत की खातिर था, जैसा कि खुद फरमाता है, बस मैंने खलकत को इस वास्ते पैदा किया कि मैं पहचाना चाहूं। लेकिन इससे पहले अंबिया और औलिया में कि किसी मुशाता ने गैब की इस पर्दा नशीन चेहरे से इज्जत का निकाब नहीं उठाया और हमेशा उसे गैरत के गुंबदों और पर्दों में पोशीदा रखा गया है ताकि नामहरमों और गैरों की नजर उसके जमाल के कमाल पर ना पड़े और हर अहलो ना अहल की नजर न लग जाए, क्योंकि नजर का असर बढ़ है। चांद पर छाइयां इस वास्ते पड़ गईं कि वो हर लायको नालायक का अंगुश्त नुमा हुआ और नजर लग गई। सूरज ने जब ये वाकया देखा तो दूरबाश नूरबाश दूर रह नूर रह के मुखौले पर अमल किया और चेहरा नाराजगी से गर्म कर लिया, ताकि अगर किसी खाम तवा की आंख की पुतली उसको देखे तो वो उसे शुआओं की तलवार से दूर कर दे। इसी वजह से वो सलामत रहा, और यही वजह है कि चांद को देखने वालों की नजर लग गई और सूरज ने देखने वालों के लिए तलवार सोंत ली। मिसरा हासिल कलाम ये कि जहां तक मुशाइखे इज्जत का बुर्का गैब की कमवारियों के चेहरों पर डालते थे और गैरत के पर्दों को बयान के हाथ से नहीं उठाते थे ताकि इरफान का जमाल जाहिर न हो जाए। यह सब कुछ उस वास्ते था कि अबूदियत की रजूलियत एक ग्रोह में वो मुशाहिदा करते रहे और तहय्यत से बाजों से झगड़े भी। हुसैन मंसूर की एक बहन थी जो इस राह में रजूलियत का दावा करती थी और खूबसूरत थी। वो कभी कभी शहर बगदाद में आती तो आधा चेहरा ढांक लेती और आधा खुला रहने देती। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तू सारा चेहरा क्यों नहीं ढांपती? उसने कहा, अगर तू मर्दी दिखाए तो मैं ढांप दूं। बगदाद बार में सिर्फ हसीन एक नीम मर्द है, ये सिर्फ उसकी खातिर है। अगर वो भी ना होता तो ये आधा चेहरा भी ना ढांपती। बस आज अगर मार्फत का चांद गैरत के हाला से बाहर निकले तो अंगुश्तनुमा लोगों के असेब नजर से फारिग है, क्योंकि अंगुश्तनुमा खुद अंगुश्तनुमा हो गए हैं। और अगर वहदत का खुर्शीद गैरत की तलवार लिए अशनीनियत के पहाड़ पीछे से निकले तो अगलब है कि वो आंखों वाले सी मुर्ग की तरह इस्लाम गुर्बत से जाहिर हुआ, और अनकरीब ही जिस तरह जाहिर हुआ उसी तरह ऊद कर जाएगा कि गुर्बत के पहाड़ पीछे गरूब हो जाए। और अगर गैब की पर्दा नशीन कशफुल कनाह पड़े तो वो गैरों की मलामत से बच जाए, क्योंकि वो शरीफ जो गर्दनवाह में रजूलियत की लाफजनी करते थे इराफ की तरफ बोरिया बंधना ले गए हैं कि और इराफ पर कई एक लोग हैं। सुभान अल्लाह, वो ऐसे गए कि उनका निशान तक नहीं पाया जाता। लेकिन मारिफत शहूदी खासुल खास की मारिफत है जो मौजूदात का खुलासा और कायनात का लुब्बे लबाब है। दोनों जहान उनके वजूद किताबें हैं और हकीकत में दाराए अज़लो अबद का नुक्ता वही है। जैसा कि ये ज़ईफ कहता है, रुबाई रूह को कालिब से ताल्लुक देने का फायदा भी असल में इसी मारिफत की हकीकत थी। इस वास्ते के बशरी अरवाह को फरिश्तों की तरह रबूबियत सिफात से बहरा हासिल था, लेकिन बादिज़ां इतने हजार नूरानी हिजाब वसीला थे कि अगर एक हिजाब उठा देते तो तमाम अरवाह जिब्राइल की तरह जो कि रूहुल कुदस था फरियाद कर उठते कि अगर मैं एक उंगल आगे बढ़ूं तो मैं जल जाऊं। यह भी हिजाब के अनवार का परताव है, जहां पर सिफाते अलूहियत की तजल्लियात की हकीकत जाहिर हो कि मारिफत शहूदी जिसके शहूद का नतीजा है, तो वहां पर अरवाह मजाजी का वजूद इस शहूद की हकीकत से हक आया और बातिल जायल हो गया। तहकीक बातिल जायल हो जाने वाला था। पढ़े मारिफत का बहरा किसको हासिल हो, और ये इस सबब से है कि रूह निहायत लतीफ है, सिफाते उलूहियत की तजल्लियात के अक्स को कबूल नहीं कर सकती। और इसी तरह फरिश्ते भी
हैवानात को अक्ल, दिल, सर, रूह और खफी के मदरिकात नहीं दिए गए कि इनसे सिफाते उलूहियत की तजल्लियात के अनवार का इदराक कर सके। बस हिकमत बेनिहायत और कुदरत गायत इस बात की मुक्तदजी हुई कि आदम की मिट्टी को खबीर करते हुए आदम के बातिन में जो कि गैब के घर का खजाना था, कुदरत के हाथ से एक दिल कंदील की शक्ल का बनाए जो निहायत ही साफ हो और उसको तारीक जिस्म के चरागदान में रखे और दिल की कंदील में एक चराग बनाए जैसा कि अल-मिस्बाह फी ज़जाजा से जाहिर है और उसे सर कहते हैं, और इस चराग में खफी की बत्ती रखे। बस रूह के रोगन को जुबान रूही के मुबारक दरख्त से लिया गया है और ना आलिम मलकूत के शर्क में पाया जाता है और ना आलिम मुल्क के मगरब में दिल की कंदील में रखा। रोगन चूंकि निहायत साफ और नूरानी था, इसलिए चराग किसी रोशनी देनी चाहता था, अगरचे अभी से इसका ताल्लुक नहीं हुआ था। करीब है कि उसका तेल रोशनी देवे, अगरचे आग ने उसे नहीं छुआ। रोगन रूह के निहायत नूरानी होने की वजह से दिल की कंदील को कंदील है कि गोया चमकता हुआ सितारा है कि नूरानियत का कमाल हासिल हुआ। इस नूरानियत का अक्स कंदील की अंदरूनी हवा पर पड़ा तो मुनव्वर हो गई, जिसे नूरानियत अक्ल कहते हैं। मशकात की अंदरूनी हवा को जो कंदील की नूरानियत के अक्स का कालिब बनी तो ए बशर के नाम से नामजद किया, और जो पर्दा मशकात के अंदर से मशकात के सुराखों पर पड़ा उसे हवा से खमसा कहा। और जब तक उन असबाब और औजारों ने उस वजह से मुदर्रिकात इलाही को बदरजा कमाल ना पहुंचा लिया, तब तक कुंता कंज़न मख्फिया का भेद जाहिर ना हुआ। यानी इस चराग के नूर का ज़हूर उन असबाब और आलात से होना चाहिए था, और जब तक ये चराग ना हो, अगरचे नारे इलाही तमाम कायनात के जर्रों को घेरे हुए है, जैसा कि इल्ला इन्नाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत से जाहिर है, लेकिन कुंतु कंज़न मख्फिया उस वक्त तक मख्फी ही रहता है। इस चराग के लिए इस नारे इलाही के नूर के ज़हूर के वास्ते इन आलात का होना जरूरी है। चूंकि आलम अरवा में सिर्फ रूहानियत का रोगन ही था, इसलिए वो नार की नूरानियत को कबूल नहीं कर सकता है। और चूंकि आलम हैवानात में मशकात और कंदील तो थी, लेकिन चराग, रोगन और बत्ती ना थी, इसलिए वो भी नार की नूरानियत को कबूल नहीं कर सकता था। इसी वास्ते इन दोनों आलिमों से एक मजमुआ बनाया, जिससे मुराद आदम है। इसके जिस्म को मशकात, उसके दिल को कंदील, उसके सर को चिराग और उसके खफी को बत्ती और उसकी रूह को रोगन बनाया। बस हकीकत में नूरे इलाही की आग ने इस मशकात में इस चिराग पर अपनी तजल्ली की, जैसा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस भेद की खबर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और उसमें तजल्ली की। खुद अल्लाह ताला ने इस बारे में फरमाया है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मिस्ला नूरिही मशकाताहु फीहा मिस्बाह। अल्लाह ताला जमीन व आसमान का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कंदील में चिराग। यहां तक कि ये भी फरमाया है, नूरुन अला नूर याहदी अल्लाहु लिनूरिही मन यशा। नूरुन अला नूर है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसकी तरफ रहनुमाई करता है। यानी मिसबाह का नूर नूरे इलाही है। अला नूर यानी रूह के रोगन का नूरे इलाही नूर से चराग को मुनव्वर करे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि चरागदान और चराग हर शख्स को मुहैया है, लेकिन नूरे इलाही हर चरागदान और चराग में नहीं। हर एक चराग रूह के रोगन के नूर से मुनव्वर है और हर शख्स के दिल का चरागदान इस नूरानियत से रोशनी हासिल करता है, जिसे अक्ल कहते हैं। और इस नूर का अक्स जो चरागदान के अंदर और बाहर पड़ता है, वो तवाए बशरी और हवा से हमसा से मुनव्वर होता है। यही वजह है कि सरगश्ता महरूमों का गुरूह जिसकी इंतहा अक्ल और माकुलात पर है, ख्याल करता है कि उसका चराग नूरे हकीकी से मुनव्वर है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि जो नूरानियत वो अपने आप में देखते हैं वो फकत रोगन रूह के नूर के अक्स की वजह से है, और ये कि वो नूर मजाजी है। ये यकात के मानी ये है कि उसने रोशन करना चाहा लेकिन ना किया। इस ग्रोह का चराग नूरे इलाही की आग से बुझा हुआ है और उनको खबर ही नहीं, क्योंकि ये खबर सिर्फ उसे मालूम हो सकती है जिसका चराग किसी वक्त हकीकी नूर से रोशन रह चुका हो और वो उसका शौक हासिल कर चुका हो। जब वो पाक साफ होता है
तो फिर उसे खबर होती है। अल्लाह ताला दोनों ग्रोहों की बाबत खबर देता है, एक वो जिनके चिराग नूरे इलाही से मुनव्वर हुए और दूसरे वो जिनके चिराग इस नूर से महरूम है। क्या एक शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसमें जान डाल दी और उसको एक नूर अता फरमाया जिसकी मदद से वो लोगों में खास तरह चलता फिरता है, क्या वो उस जैसा हो सकता है जिसका हाल ये है कि अंधेरों में गिरा पड़ा है, वहां से निकल नहीं सकता। ये है मारिफत शहूदी की शरह, जिस कदर के इबारत में अदा हो सकती है। जिसने इस नूर से देख लिया है वो समझ जाता है और पा लेता है और उसे उसकी खबर हो जाती है। जो जिंदा होता है वो डरता है, लेकिन जो शख्स इस नूर से मुर्दा है, ख्वाह तो उसके पास इस किस्म के 1000 दफ्तर भी पढ़े तो भी वो एक हर्फ नहीं सुनता कि मुर्दे तेरी बात नहीं सुनेंगे। बस वाज़े रहे कि कालिब से रूह का ताल्लुक होने का यही सबब था। अगर ये ताल्लुक ना होता तो रूह को ये गैबी और शहादती मुदरकात हासिल ना होते। ये ताल्लुक इस वास्ते था कि वो सिफाते उलूहियत की तजल्लियात के काबिल बन जाए और खुदावंदी ज़ात और सिफात की मारिफत में चराग होने का शौक हासिल करे। क्योंकि अगर लाख आकिल चराग की नारियत और नूरानियत की बाबत खबर देना चाहे तो भी जो कुछ वो कहेंगे सब का सब मजाजी होगा, हकीकी उसी की होगी जिसको बत्ती और तेल भी दिया गया है और जिसने इन दोनों को वजूद पर खर्च किया है और नूरानियत और नारियत की मारिफत के ज़ौक को हासिल किया है। रुबाई ये एक अजीब भेद है। रूह के रोगन को वजूद के लिए खर्च करने के लिए ये सारे वसीले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पतीला भी एक वसीला है ताकि मजाजी वजूद की रूह को हकीकी वजूद में तब्दील कर सके और हकीकी नारियत के वजूद को जो मख्फी और गैर मरई है जाहिर और मरई कर दे। बस हकीकत में जिस तरह रोगन आग पर आशिक है ताकि मजाजी वजूद को हकीकी बनाए, इसी तरह आग भी रोगन पर आशिक है ताकि पोशीदा खजाने को जाहिर करे। यही पोहम व यही बूनाहू का यही भेद है और कुन तो कंजन की भी यही कैफियत है। ये सारे फायदे रूह और कालिब के बाहमी ताल्लुक से हासिल हुए ताकि वो हक की ज़ात पाक को वहदानियत से पहचान ले और उलूहियत की तमाम सिफात को जान ले। जो जानने के लायक है वो देखने के लायक है, जो देखने के लायक है वो पहुंचने के लायक है, जो पहुंचने के लायक है वो चखने के लायक है और जो चखने के लायक है वो होने के लायक है और जो होने वाली है वो नाबूद होने वाली है और जो नाबूद होने वाली है वो बूद होने वाली है। अगर रूह कालिब के ताल्लुक की वजह से इन मुदरकात को हासिल न करती और ये आलात, असबाब और इस्तिदाद उसे मुयस्सर न होती तो गैबी और शहादती से हरगिज़ आलिमुल गैब व शहादत की ज़ात और सिफात की मारिफत और तौहीद में इस मुकाम पर ना पहुंच सकती। ना ही उसमें ये इखलाक होते, ना ये सिफात होती और ना ही अल्लाह ताला की खिलाफत और नियाबत के लायक होती और ना ही अमानत के बोझ को उठाती और ना ही उसे जमाले हक का आईना होने का इस्तेहकाक हासिल होता और ना ही कोई कुंतो कंजन मख्फिया के खजाने के पास पहुंचता। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।